نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کو اور اے ایم پی کو سیاسی اتحاد کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ نے کسی بھی سیاسی بندے کے لیے اس کا ڈیفائنڈ ٹائم ہے نااہلی کا، وہ 5 سال قرار دیا ہے۔ ہر ایک سے ہاتھ ملاؤں گا سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ یہ بہت گرا ہوا لیول ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں داش میاں، مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ الیکشنز ایک کویشچن مارک بنا ہوا ہے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، حالانکہ جتنے بھی کریڈیبل ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہو گیا، آرم فورسز کا ادارہ ہو گیا، سب جگہ سے یقین دہانی آ گئی ہے کہ جی الیکشنز ہیں 8 فروری کو، تسلی رکھیں آپ، لیکن وہ سٹل ایک کویشچن مارک ہی ہے۔ گورنمنٹ کو سیکیورٹی تھریٹس موصول ہو رہے ہیں الیکشن کے دنوں کو لے کے، جس کی وجہ سے وہ بیس بنایا جا رہا تھا کہ ان کو ڈیلے کر دینا چاہیے، لیکن اس کو یہی کہا گیا کہ ہماری کوشش ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہ آئے، لیکن الیکشنز کی ڈیٹ فائنل ہے۔ بائی نیم صرف جو ہے نا ایک سیاستدان کا نام موصول ہوا ہے اس سیکیورٹی تھریٹ میں، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا گیا، کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو۔ ابھی جو مولانا فضل الرحمان کا قافلہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا، اور ٹول پلازا کے اوپر جو ہے وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے ان کے قافلے کے آس پاس، اور اس میں وہ ایک اٹیمپٹ ہی ہے نا یہ، یعنی کہ جو اس تھریٹ میں کہا گیا تھا وہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ابھی مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور مجھے نہیں لگتا ہوں گے اکارڈنگ ٹو ہم، کہ جی سیکیورٹی تھریٹ ہے اور ساتھ ساتھ موسم کا مسئلہ ہے۔ اگر ان دو فیکٹرز کو آپ اگنور کر کے سٹل الیکشنز کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دھاندلی کی طرف الیکشنز کو لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے اور یہ مسئلے ووٹر کا ایشو آ جائے گا، اور سیکیورٹی کا ایشو ویسے اسٹینڈ کرتا ہے۔ فردر انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑے دن ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اور جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کو پتہ ہے کہ 2 صوبوں میں صورتحال بہت خراب ہے اور مسئلے آ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم دعا گو ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان ان کو ہی کوٹ کر رہے تھے کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی انف چیز ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی مرے نہ، یہ انف ہے آپ کی طرف سے یہ ایفرٹ، کیونکہ یہ راجہ سلطان نے یہ بات کہی تھی چیف الیکشن کمیشن نے کہ جی حالات خراب ہیں 2 صوبوں میں، سیکیورٹی تھریٹ ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں۔ تو وہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا اس سارے سچویشن میں ایسا ہے نہیں، لیکن ابھی آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو جیسے مولانا فضل الرحمان کو نا انہوں نے وہ سیکریفیشل گوٹ بنائی ہوتی ہے نا، کہ یہ بلی کا بکرا ہے، کوئی نہیں، اس کو تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو خیر ہے، باقی کام ہونے چاہیے، اس طرح کی کوئی حالات فیل ہو رہے ہیں۔ نام سے تھریٹ آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دعا کر رہے ہیں جی فضل الرحمان صاحب آپ کو کچھ نہ ہو، ٹینشن نہ لیں آپ۔ تو ابھی سیکیورٹی تھریٹ ایک ریالٹی ہے، وہ ہمارے ملک میں ان جنرل بھی ریالٹی ہے، اور ابھی اگر آپ سیکیورٹی الیکشنز ان الیکشنز کے لحاظ سے اگر آپ سیکیورٹی کی بات کریں تو ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، جو پاکستانی ہیں، اور وہ اس وقت اتنا آگے نکل گئے ہیں نا اپنے مفاد کے لیے، اپنی پرسنل گین کے لیے، کہ وہ میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہوگی چیز، شاکنگ نہیں ہوگی کہ اگر ہمارے ملک کا کوئی بڑا اپیرنٹلی محب وطن بندہ ہی جو ہے نا کسی بد امنی کی صورتحال کو پیدا کرنے کا ریزن نکلتا ہے اینڈ پہ الیکشنز کے دنوں میں، وہی بات کہ پرسنل گین اور یہ ساری چیزوں میں یہ بالکل بلائنڈ ہو گئی ہوئی ہیں یہ ساری جماعتیں اور ادارے پاکستان کے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو جو ان کے سینٹرل اسپوکس پرسن ہیں معظم بٹ، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کو اور اے ایم پی کو سیاسی اتحاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو گولز ہیں ہمارے وہ ایک ہیں، ہم ایک ہی طرح جو ہے نا ایک ہی چیز چاہتے ہیں، اور ہم مل کے کام کریں گے تو ملک میں بہتری آئے گی۔ ابھی کوئی 1 منتھ پہلے میرا خیال ہے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ہر ایک سے ہاتھ ملاؤں گا سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، پیپلز پارٹی۔ تو بہرحال ابھی پاکستان تحریک انصاف کا خود بھی یہی مزاج تھا، آل ان آل وہ ہر چیز چاہتے تھے، ان کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ وہ کسی کے بھی ساتھ سیاسی اتحاد کریں۔ ابھی حالات بیچاروں کے بڑے خراب ہیں، تنگ حالات ہیں، تو کرنا پڑتا ہے، اور ان کا جو تینوں کا گول ایک ہے نا، ابھی یہ اکارڈنگ ٹو معظم بٹ وہ گول جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی یوتھ کی بات کرتے ہیں، اور زرداری کی جو ان کا نظریہ ہے، نیریٹو ہے، اس کو اگنور کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بھی اس طرح ہی سوچتی ہے، تو لیٹس کولیب، یہ ان کا ہے بات۔ لیکن اندر کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان تینوں کا، اے این پی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان کا رائیول جو ہے نا مسلم لیگ نون ہے بیسیکلی۔ مسلم لیگ نون کے اتحادی جو ہیں وہ آئی پی پی ہے،
जहांगीर तरीन की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है खटक साहब की, तो ये असल में राइवलरी है। असल राइवलरी है पीएमएलएन को टारगेट करना, और टारगेट इस तरह का करना कि उनको जो फेवर अपेरेंटली फेवर मिल रही है, क्योंकि उनकी भी फेवर अभी कोई कंफर्म नहीं है। जिस तरीके से नवाज शरीफ का भी केस सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी डिसक्वालिफिकेशन का ताहयात नाअहली का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क ही बन गए हैं अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को लेके। और जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ख़त्म है ना, लाइक यू कांट इवन टच देम इस चीज़ में। मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल भी नहीं, आप भूल जाएं। एक काम उन्होंने सारे टाइम पीरियड में जो सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में आ गया था, जो उन्होंने किया था, वो था जी वोट को इज्जत दो। और वो भी इरफान सदीकी जब सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में आए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि हम बातचीत कर रहे थे और उसमें ये एक वर्ड यूज़ हुआ, लाइन यूज़ हुई, वो अच्छी लग गई, तो इस तरीके से उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। इंटेंशनली कुछ नहीं था, और इंटेंशनल कैंपेनिंग तो भूल जाएं आप इनसे। बिल्कुल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरीके से अगर मूव करती जिस तरीके से ये करते हैं, और जो उनके साथ हो गया है जब से इमरान खान को उनकी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटाया गया है, तो वो तो मेरा ख्याल है अभी तक ख़त्म हो गई होती, मिट गए होते वो लोग इस सारे सिनेरियो में बहुत इजीली। बहुत बहुत क्विक कॉर्नर होना था, उन्होंने इतनी एफर्ट ही ना लगती। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि वो अभी तक कॉर्नर नहीं किए जा सके, तो वो ये उनकी सोशल मीडिया टीम्स हैं, उनकी जो कैंपेनिंग है। और जहाँ तक नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का ताल्लुक है और इस ताहयात नाअहली के केस का ताल्लुक है, तो उसमें हज़ार आर्ग्यूमेंट है, नैरेटिव है जो मुस्लिम लीग नून बिल्ड कर सकती है अपने हक में, लेकिन नहीं, यूज़ ही नहीं करना। ज़रूरत क्या है? आप मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं बहुत सारे, जावेद चौधरी ले लें, हामिद मीर या मुईद पीरज़ादा, इन सब के आप पुराने ज़रा प्रोग्राम्स उठा के देखें, उसके अंदर उन्होंने बात की हुई है इस डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। नवाज शरीफ के साथ जो मामलात उस वक्त हुए थे, और उसको बड़ा उन्होंने वीक करार दिया है कि ये इसके अंदर जो है ना फ्लॉज हैं इस केस के अंदर, ये स्मूथ नहीं है, गलत हुआ है, नहीं यूज़ लेकिन नहीं करना है इन्होंने। लेकिन बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है कि किस तरीके से फैसला आता है। हालांकि पार्लियामेंट ने किसी भी सियासी बंदे के लिए जो उसका डिफाइंड टाइम है नाअहली का, वो 5 साल करार दिया है। इलेक्टेड जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने ये काम किया है। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो इलेक्टेड तो नहीं होते, तो दे कांट डिसाइड कि आपने कितना टाइम पीरियड रखना है बेसिकली। लेकिन केस फिर उनके पास चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन की और आम बंदे की तो वैल्यू है ही नहीं। इलेक्ट का जो लफ्ज़ है ना पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट का लफ्ज़ एग्जिस्ट करता है। फर्दर ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब समेत 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया है। और ये पहले जो था, काफ़ी सारों के आईडी कार्ड जो हैं CNIC वो ब्लॉक कर दिए गए थे, मूवमेंट इनकी बिल्कुल जो है वो ताकि ज़ीरो कर दी जाए। अब इनकी जायदादें जो है वो ज़ब्त करने का हुक्म आया है। मुराद सईद के कागजात नामजदगी भी जो है सबसे पहले जो थे मुस्तरद हुए थे 2 हलकों से, क्योंकि वो मफरूर हैं। तब ऐसा कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड थी चीज़। लेकिन उसके बाद फिर जब 90% उनकी कोई जो लीडरशिप ख़त्म, वो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तब अप्रोर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सारी चीज़ को लेकर। फर्दर ये है कि जो हमारी फ़ौज है उसके बारे में एक करारदाद मंजूर हुई है सेनेट के अंदर, जिसके मुताबिक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सज़ा देने की जो है ना एक करारदाद है। और सेनेट में पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमंद खान तंगी ने करारदाद पेश की, और करारदाद में कहा गया कि फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए। और फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का अदराक करते हैं। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ेर हैं। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सेनेट में उसके जो रहनुमा हैं उन्होंने भी इसको जो है उसकी हमायत की है इस करारदाद की। देखें, आसिम मुनीर ने भी इसके बारे में बयान दिया था कि ये प्रोपेगेंडा करके बहुत वीक शो करने की कोशिश की जा रही है फ़ौज को, फ़ौज के जो अवाम के साथ रिलेशंस हैं और ओवरऑल जो एक ये स्ट्रक्चर है उस सारे को। प्रोपेगेंडा तो है फ़ौज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा, और जो एक एंटी
क्या कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, इसको तो नहीं, एंटी आर्मी जो एक सेंटिमेंट है उसको जो है वो हवा दी जा रही है। और इसमें अभी आई डोंट नो इफ आई कैन रिलेट इट विद दैट, बट जमशेद दस्ती हैं, उनकी जो वीडियो मैसेज है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको हरास किया गया है, उनकी फैमिली को हरास किया गया है इंटेलिजेंस की तरफ से और सीटीडी की तरफ से। ये एक वीडियो बहुत एक मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम वीडियो है। वही बात है कि जी यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना कंसिडर नहीं की जाती कि वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सीवियर और बहुत इखलाक से गिरी हुई है कि इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। आप उस्मान डार का पहले इस तरह का केस आया था, अब जमशेद दस्ती का आ रहा है इस तरह का, और पुलिस ने एलिगेशंस रिजेक्ट कर दिए हैं कम्प्लीटली कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेबुनियाद करार दिया है इसको। इसमें दो बातें हैं कि अगर हुआ है इस तरीके का कुछ तो उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों के लिए करारदाद नहीं है, ठीक है, ये कोई डेफमेशन नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं जो वो बता रहे हैं जमशेद दस्ती। और लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, एक बात तो ये है कि अगर ये एक स्टेज्ड चीज़ है, जिस तरह अब ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था कि जी जमशेद झूठा दस्ती, हालांकि झूठ अभी आपको नहीं पता कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। और जब कोई हरास किसी को करता है तो वो 4 कैमरास लेके तो नहीं फिर रहा होता कि भाई रुको अभी मुझे ज़रा वीडियो ऑन करने तो फिर मुझे हरास करना, इस तरीके से तो नहीं होता। ऑब्वियसली अगर कोई आपको डराने धमकाने के लिए आया आपके घर के अंदर तो दैट विल बी सडन, आपको कोई मौका नहीं मिलना कि आप एक विटनेस भी दिखा सकें ला के। लेकिन फिर भी बीच में जो है ना इस चीज़ की गुंजाइश होती है कि पॉलिटिक्स है ना, सियासत है, और जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर सियासत होती है, क्या ही कोई ड्रामा होगा जो यहाँ पर हमारी सियासत के अंदर मौजूद है। तो उसमें फिर वही बात की गुंजाइश है स्टेज्ड होने की, झूठ होने की, राइवल्स कहेंगे बात, लेकिन उन्होंने इतनी स्वेयर की है और जिस तरह के उन्होंने वर्ड्स और जिस तरह की उन्होंने एक्सप्लेनेशन अपनी फैमिली को लेके जिस तरीके से उनको हरास किया गया, जो इस्तेमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर अभी तक किसी भी जो सिक्योरिटी का इदारा है उसकी तरफ से एक्शन का ना आना वो एक बहुत गलत हरकत है। उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और एक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें कंप्लीट तरीके से। ये उस्मान डार और ये जो 2 केसेस हैं, यहाँ तक सियासत को और इन पर्सनल दुश्मनियों को और इन पर्सनल ज़ाती मफादात की गेम को मत पहुँचने दें इस लेवल तक, बल्कि पहुँचना नहीं, गलत वर्ड है ये, इस लेवल तक मत गिरने दें। ये बहुत गिरा हुआ लेवल है, बिलो द बेल्ट। ये जो बैटल ऑफ एलीट्स है चल रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मेरा ख्याल है कोई स्टैंडर्ड्स रखें, बाउंड्रीज रखें। तो अगर ये फेक है जमशेद दस्ती का, अगर ये स्टेज्ड है, तो एक रिक्वेस्ट है ये जो भी हमारे इदारे हैं, हमारे फ़ौज है, यासिम मुनीर हैं, इनसे कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, प्रॉपर जो है सबूतों के साथ। और अगर आपको ये नज़र आता है कि इसमें सच्चाई नहीं थी तो इसको फिर इस तरीके से डील किया जाए फिर इस केस को कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई झूठ या इस तरीके से किसी चीज़ को कोई स्टेज करने का सोचे भी मत, क्योंकि जो सियासी तरबियत हो रही है इस वक्त अवाम की, वो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉइंट पर पहुंच गई है और इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। और जो पीटीआई केयर टेकर चेयरमैन हैं गौहर अली ख़ान, और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया लेकिन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पीटीआई को पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, लेकिन अगर पीटीआई से जाए तो गिरफ्तार होता है। अदलिया अपना किरदार अदा करे तो मसाइल का हल मुमकिन है। अदालत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। काजी फ़ाइज़ ईसा को मुदाखलत करनी होगी इन मामलात में, नोटिस लेना पड़ेगा, गौहर अली ख़ान का कहना है। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जी फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। और बल्ले का निशान ना मिला तो कोई भी निशान जो मिलेगा उस पर इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करेंगे। और ये कि जी प्लान बी और सी भी हमारे पास मौजूद हैं जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। अभी इलेक्शंस तो पता ही नहीं है होने हैं नहीं होने हैं, किस तरीके से सीन बनता है, क्योंकि जो प्री पोल रिगिंग है वो अब एक पाकिस्तान से निकल के एक वाइडर कॉन्सेप्ट बन गया है। इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया जो है बहुत थोड़ा लेकिन इन्वॉल्व होना शुरू हो रहा है कि किस तरीके से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और
बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जी कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला चल रहे हैं ना, तो उसमें हालात यही हैं कि आप इसको या तो डिले ही कर देना पकड़ के, जिस आपने एक ज़हमत कर रहे हैं इलेक्शन करने की बेसिकली। कर तो आप अपनी चला रहे हैं, कर अपनी रहे हैं, तो आप ना करें फिर। जिसको आपने सेलेक्ट करना है डायरेक्ट लाके बिठा दें। और जहाँ तक इलेक्शंस के इस तरीके से जिस तरीके से ये करना मुश्किल हो गया है ना, उसका रीज़न ये है कि किसी भी स्टेबल मुल्क के अंदर जिस दिन इलेक्शंस हैं उस दिन हैं, पत्थर पे लकीर, बात ख़त्म। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अपनी मर्ज़ी चलानी होती है ना, तो जौन सी भी पार्टी है इस वक़्त, जिस तरह भी आप नून लीग को लें, अगर वो नून लीग इस चीज़ पे खुश हो रही है कि इलेक्शन डिले हुए थे या नहीं हुए थे, या फजलुर रहमान है या पीटीआई, तो वही बात कि उतनी मुल्क की स्टेबिलिटी ख़त्म होती जाती है। क्योंकि प्राइम जो लीडर मुल्क का होता है, अभी जिस तरह काकड़ साहब हैं, एक केयर टेकर वज़ीर आज़म, इट्स बिन अ व्हाइल, बड़े टाइम से वो इस टाइम केयर टेकर वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं मुल्क के, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जिस तरीके का उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल का 2 कौमी वो क्या कहते हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन, सॉरी, उसका जो मशवरा उन्होंने दिया बैठ के एक प्रोग्राम के अंदर, हालाँकि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पोज़ीशन ही नहीं है कि वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे, ठीक है? लेकिन उन्होंने दी, और उनके कांस्टेंट जो है इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट और उनकी बात और सब कुछ चल रहा है, पीटीआई को बहुत ज़्यादा जो है रिजर्वेशंस हैं काकड़ साहब से कि जी ये इलेक्शन इनके होते हुए फेयर नहीं हो सकते। और उनका आगे से जवाब ये था कि नहीं, हम कराएंगे, हम फेयर करवा के जाएंगे, हमारी कोशिश यही है। तो इस तरह के हालात में आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर किसी भी तरह की कोई बेहतरी आ सकती है, जब आपने वहाँ एक इलेक्टेड एलिजिबल बंदा नहीं ला के बिठाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शंस जिनमें से हमने इलेक्ट करना है किसी एलिजिबल को, वो ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा बुरों में से कम बुरे को सिलेक्ट करना। खैर, अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।